اساتذہ کے ساتھ میں انصافیت کی ہے عام اس کا آپ کو اس وقت بھی شاید یہ اثر نظر آیا کہ ٹیچر کا تھوڑا خوف آ گیا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ٹیچر کو خوف ہو، بالکل بھی نہیں۔ وہ ٹیچر جو پچھلے ایک سال میں درجنوں بار احتجاج، جلوس اور جنرل باڈی اور بائیک اور ہڑتال، اور یعنی پچھلے سال فروری سے کر رہے تھے مجھے جب علی عبداللہ صاحب سے 19 دن یونیورسٹی بند ہوئی، ادھر تو کبھی بھی نہیں رہی، ان دنوں میں بھی نہیں رہی۔ فروری والی ہڑتال ہماری ٹوٹل ملا کر کے وہ کچھ اور ہے، لیکن جون سے جو معاملہ ہوا ہے وہ بدل گیا، اور جو آپ نے لکھا تھا اسٹیچوری باڈیز کو ایک ایجنڈا آپ کا تھا دوسرا، اسٹیچوری باڈیز کو غیر فعال ہے۔ آپ دیکھیں کہ سلیکشن بورڈ میں جو ہوتا ہے وہ سلیکشن بورڈ کو غیر فعال کرتے ہیں کہ پوسٹیں نہیں ہیں، اور جو ہے وہ سنڈیکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ سلیکشن بورڈ کا فیصلہ۔ اسی طرح سے معاملہ آگے بڑھ گیا، اکیڈمک کاؤنسل تو خیر ہوتی نہیں، سنڈیکیٹ جو ہوتی ہے بجٹ اجلاس کے لیے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بجٹ ہی پیش نہیں کیا جاتا، اور جو انداز سنڈیکیٹ میں اپنایا جاتا ہے ہمارے مختلف نمائندوں کے ساتھ وہ دکھائی جا رہے ہیں۔ جو انداز آج سے 2 ہفتے پہلے بی ایس آر میں اپنایا گیا وہ تو میں کہتا ہوں شرمناک، یعنی اس کے بعد جو خبریں لگی، اور یہ صرف خبریں ایسی نہیں لگی، یعنی اگر آپ ملے جا کر اس وقت ڈینس 6-7 ڈینس ہیں ہمارے، اور آپ کو میں گارنٹیڈ ہے آج بھی ہے کہ 5 لوگ آپ سے کہیں گے کہ اتنی زیادہ بدتمیزی کبھی نہیں۔ یہ ساتھ 6 گھنٹے کی میٹنگ میں کس کس آدمی کا نام لے کے نہیں بولا گیا، کس کس آدمی کی تصدیق نہیں ہوئی، یعنی ان میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کو بہت ہی قریب۔ اور اس کے بعد ٹیچرس نے جو ہے وہ جو ہمارے منتخب نمائندے تھے انہوں نے بھی، جو ٹیچرس کے نامینیٹڈ نمائندے انہوں نے بھی اپنی ملاقاتوں میں باضابطہ مجھے اس بات کا تجربہ ہوا کہ اتنا ان لوگوں میں غصہ تھا کہ کبھی کوئی فون کر کے بتا رہا ہے، کبھی کوئی فون کر کے بتا رہا ہے، کبھی دوسرا آدمی بیٹھ کے بتا رہا ہے، تیسرا آدمی بیٹھ کے بتا رہا ہے۔ عام طور پہ 3 لوگ ہیں یا 20 سال کی میٹنگ کے نمائندے ہو گئے، وہ اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پر ان کے ساتھ کسی نے انفیئرلی بات بھی کر تو وہ باہر آ کے نہیں بتا، ان کو کل پھر 100 مسائل لے کے اسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اکیڈمک کاؤنسل کا 90% کام تو یہ صاحب نہیں کر دیا جاتا ہے، اس لیے اکیڈمک کاؤنسل نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں، اجمل صاحب کے زمانے میں بھی بی ایس آر ہوتی تھی، ایسا صاحب کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، سیفی صاحب کے زمانے میں بھی بی ایس آر ہوتی، بی ایس آر اس میں چاہے صدر بطور الیکٹڈ ممبر بی ایس آر بیٹھا ہو، اس کو اس کی اتنی ویلیو ہوتی جتنی کسی اور آدمی، اور وائس چانسلر جو ہے وہ بی ایس آر کو اس طرح سے نہیں چاہتا کہ پوری فیکلٹی کا بی ایس آر ہی اڑا، جیسے پوری سوشل سائنسز کی جتنا بھی ایجنڈا ہے، ریفری کی رپورٹ، اپوائنٹمنٹ، سارا آرڈر یہ کہہ کر کہ یہ کون لوگ، ان کو کوئی ریفری ہو گیا، یہ کون لوگ، ان کو کوئی ایگزامنر ہو، یہ بات باہر کیوں آتی؟ بی ایس آر کوئی ایسا تو ادارہ نہیں ہے کہ ہماری یونین کے جو ڈسکس ہو رہے ہو یا ہماری سیلری جو بڑھنے والی ہو ڈسکس ہو، یہ بات باہر اس طرح سے آتی ہے کہ 9 میں سے 8 آدمی یہ بات بولتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا اور یہ غلط ہے۔ یہ لوگ کوئی بی ایس آر کی میٹنگ 6 گھنٹے بعد جب ختم ہوئی تو یہ 6 آدمی بی ایس آر کے نیچے کھڑے ہو کر آدھے گھنٹے تک گفتگو یہی کرتے رہے کہ یہ کیا رویہ ہے۔ تو ہمارا جو میرے نزدیک اگر آپ کو یہ شہر توڑنا ہے، یہ شہر جو کہ آج جو ہے وہ مسکن پر ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی آپ کو جو ہے وہ ملازمین کی جیب تلاشی کرتے نظر آتا ہے، کبھی آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو ان کے دفتروں میں جا کر جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، چیئر پرسنس کو ہٹایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر آپ کو شہر توڑنا ہے تو یہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ظفر اقبال کی کنڈولنس میٹنگ میں کس نے آ کر جو ہے اس ماحول میں جو کہ ایک تعزیت ہے اس کو ایک ہنگامے میں بدلنے کی کوشش، اور وہاں پہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ظفر اقبال کی تعزیت بھی نہ کر سکیں، اور ہم میں سے 5 لوگ ایسے تھے جو کہ یہ بات دیکھ چکے تھے کہ اس طرح سے ہوا ہے، انہوں نے شام میں 6 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے تک ٹیچر سوسائٹی کی مذمت کرنا شروع، اور اس وقت نظر آ رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو۔ یہ جو ٹیچر سوسائٹی ہے، صدر سیکرٹری وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ جیسے بھی سے
ये हमारे मुंतखब होते हैं, हम इनसे 100 सवाल कर सकते हैं। आप रेगुलेट करेंगे मालूम साहब मीटिंग, तो आपको जवाब देंगे ही क्या क्या हुआ क्या, लेकिन आप कोई ऐसी मीटिंग रेगुलेट नहीं कर सकते जिसमें कि आप वाइस चांसलर से पूछ लें कि क्या हुआ क्या। तो जो बीएसआर में हुआ उसके आप देखें कि एक छोटा सा पहलू से जो उन्होंने मौलाना मौदूदी के बारे में कहा और ये सच्चा है, तो कल का जसारत अखबार फिर लिखता है कि ये सच इन्होंने ये कहा। अब क्या यूनिवर्सिटी बदनाम नहीं हो, अब क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर की बेइज्जती नहीं हो, अब क्या यूनिवर्सिटी की तौहीन नहीं हो रही। ये एक ऐसा अखबार जो कि फ्रिंजेस का था, जसारत अखबार की हैसियत क्या है अखबार, उनकी जो वेबसाइट पे जो लोग सर्च भी करने नहीं जाते ना उनकी खबरें पढ़ते, लेकिन वो डट के खबर लगा रहा है कि हम अपने मौके पर बताएं। क्यों कि जो लोग उस मीटिंग में थे उन्होंने उनसे पूछा होगा, उनकी बताई हुई बातें उनके रिकॉर्ड पर होंगी कि ये इस तरह से बोला गया मौलाना में, ये कोई मुफक्किर नहीं है, जो भी कुछ हो। मैं भी समझता हूँ कि बात की पहलू में देखा जाए तो मौलाना मौदूदी की सियासत से मुझे तो जिंदगी भर शदीद इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन ये कि बीएसआर का काम ये जज करना है कि आया एक आदमी को दाखिला दे चुके हैं 6 साल पहले, तो अब इसका एग्जामिनर अपॉइंट होना है या नहीं होना। ये तो नहीं है कि इसका मौजूद जो है 6 साल बाद क्या हो और ये मौजूद गलत हो जाए और उसके बाद खबर लगे। मेरे ख्याल में जो रवैया इस वक्त इंतजामिया का है वो इंतहाई खौफनाक, उसको आप मामूली ना समझें। लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, नाबीना है साजिद साहब, हम आपका इख्तलाफ हो सकता है, नाबीना है साबिर माइकिल साहब, हम आपका इख्तलाफ, लेकिन इसी गुजरे 15 दिन के अंदर साजिद साहब को सस्पेंड किया गया, जबकि इख्तियार से नहीं किया, उनके खिलाफ हरासमेंट की इंक्वायरी। साबिर माइकिल साहब को बहाल करके उनको चार्जशीट दे दी, तकरीबन निकालने वाली चार्जशीट, अगर आप देखें सही। कमजोर तरीन पर हमला करते हैं वो लोग जिनके अपने अंदर खौफ, ताकतवर तो नहीं करते। लेकिन आप देखें उसके बाद बीएसआर में जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि टीचर सोसाइटी आवाज नहीं उठा रही। मैं तो कहता हूँ फराजी तहसीन है हमारे मुंतखब नुमाइंदों पर कि कम से कम वो बाहर आके सच तो बोलते हैं कम से कम उन डीन्स पर जो कि इस बात पे डटे हुए कि नहीं ये बदतमीजी, कोई एक टीचर के साथ भी एक डीन के साथ बदतमीजी नहीं, सबके साथ बदतमीजी। जब इकबाल की कंट्रोलर्स मीटिंग में नाम लेकर डीन साइंस का कहा गया कि वो आज मौजूद नहीं है, देखिए कोई तरीका है स्टेचू रिकॉर्ड है ना। अब आप मुझे बताएं कि ये वो लोग हैं जो कि कल को वाइस चांसलर बनेंगे और जब वो हमें देखें तो कहेंगे तुम लोग तो इतने बाग है माशाल्लाह से कि जब हमारी बेइज्जती कोई करता है तो तुम कहते हो ये ठीक हो रहा है, और अब तुम आप कह रहे हो कि हम बड़े मोतबर हैं, आपका तफद्दुस होना चाहिए। भाई ये भी डीन थे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कब ऐसा हुआ कि किसी ने इनके साथ इस तरह इस अंदाज से बात की। अब नौबत ये आने वाली है कि जब स्टैट्यूटरी बॉडीज के इजलास होते हैं तो इस रवैये के ऊपर लोग बायकॉट करें, लोग खड़े होंगे, शोर होगा, हंगामा होगा। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि कंट्रोलर्स मीटिंग ना हो, आप यही चाहते हैं ना कि जनरल बॉडी भी ना हो, आप यही चाहते हैं ना कि बीएसआर भी ना हो, आप यही चाहते हैं एकेडमिक काउंसिल भी ना हो, आप यही चाहते हैं सिंडिकेट भी ना हो, यही चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं किस सूरत हाल के अंदर हमारे मसाइल इस एक फोरम की टीचर सोसाइटी से नहीं, टैग की भी टीचर सोसाइटी आ गई, ये मसाइल दुगने होते क्योंकि हम इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे कि हमारे साथियों के साथ ये रवैया क्या अख्तियार किया। मैंने टीचर सोसाइटी के जब मुझे लोगों ने बताया, लोग आमतौर पे कहते हैं मैं थोड़ा जज्बात में आके बात कर देता हूँ या इस तरह से बात कर देता हूँ वगैरह वगैरह, मैंने कुछ 6 दिन लगा। ये जो बीएसआर की मीटिंग है ये हुई पिछले जुमेरात में है ना, पिछले जुमेरात शायद 3 बजे शुरू हुई, 8:30 बजे तक लोग कह रहे हैं चली रही 2:30 बजे। तो उसके उसी दिन मुझे पता चला, मुझे 2-3 और लोगों ने बताया, मैं सिंडिकेट का मेंबर हूं इसलिए लोग समझते हैं मुझे वो भी बातें बता देते हैं जो मुझे नहीं पता होती है, समझ के मुझे तो पता है। तो मैंने कोई 5-6 लोगों से उस मीटिंग में जो थे उनसे राब्ता किया, उस बात की तस्दीक की, सबने कहा बहुत बुरा हुआ, कुछ करना चाहिए। एक सिंडिकेट के मेंबर के साथ बैठकर बाकायदा टीचर सोसाइटी के सेक्रेटरी से कहा कि भाई ये बड़ा संगीन मामला है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीचर सोसाइटी की काउंसिल का इजलास बुलाएं और हम 3 आदमियों को अपने साथ बुलाएं जो सिंडिकेट के मेंबर है, जो आम तरीका है, हमेशा रहा है। जब मामला बहुत गंभीर हो जाता है, आपको लगता है कि सदा से ऊपर मामला हो गया, ये कोई ग्रुप का मामला नहीं। एक आदमी एक डीन के ऊपर रजिस्टर फेंका जा रहा है बीएसआर में, बताएगा यानी ये तो गुत्था होने वाली सूरत है। जिस तरह से वो तालीमी क्लास में खड़े हो गए,
वो तो मैं कहता हूँ कि आफरीन है हमारे असातिज़ा जो उनके साथ है, तो उन्होंने इतना पास कर लिया कि भाई तुम यहाँ पे खड़े होकर हंगामा करने से हम ज़फ़र इकबाल की लॉयल्टी को क्या बताना। मैंने टीचर सोसाइटी के सेक्रेटरी और वो सिंडिकेट के मेंबर थे, उनके सामने दोनों सीखा। मैंने कहा देखिए इसका तरीका ही है, ये बात पब्लिकली नहीं करनी है, ये डीसी का बिहेवियर क्या था या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के आदमी का बिहेवियर क्या था, उसके पास अख्तियार है, वो बोलेगा, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होगा, वो उस मीटिंग के अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि हम जाके कह नहीं पाते। ज़फ़र इकबाल की कंडोलेंस के बाद मुझसे पूछिए, आप मैंने से कहा आप इंतखाब साहब से अभी रब्ता करें और उनके साथ जाएं डीसी के पास, और ये बात से भी कहें कि साहब इतना तो बहुत था लेकिन इससे आगे प्लीज नहीं। ये तरीका से उन्होंने आपको नहीं बुलाया, गलत किया, आप हमसे बोलते, हम वहाँ मजम्मत करते, सब लोग खड़े होकर मजम्मत करते, वाइस चांसलर को, लेकिन खुद आगे कहना और ये कहना है कि टीचर सोसाइटी का सदर और सेक्रेटरी झूठ बोलते। अब आप देखिए, अगर सदर और सेक्रेटरी झूठ बोलता है तो जुबैर साहब भी झूठ बोल सकते हैं, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, सारे लोग झूठ बोल सकते हैं। तो ये अंदाज जो है ना, ये बहुत गड़बड़ है। मैंने कहा भी उनसे, मैंने कहा आप इजलास बुलाए और आप 3 लोगों को लेके, यानी 6 रुकनी कमेटी बने, हमें भी साथ रखें, मसाइल पे रखें, ये ना लिखते थे रवैया, ये लिखते थे मेडिकल का मसला, इवनिंग का मसला वगैरह लिखते, 5 चल के बात करें, जब हम सब साथ जाके बात करेंगे उनका लाभ, हमें से आगे बात करने की जरूरत। और ये आखिर में बात करेंगे कि गुफ्तगू जरा हम भी तमीज में करेंगे, आप भी तमीज में करें, थोड़ा सा ख्याल करें, हमारे सीनियर साहब नहीं हुआ। क्या फरमाया उससे 2 दिन 3 दिन के बाद, परसों की बात, तब तक मैंने नहीं लिखा, तब तक मैंने वो जसारा वाली खबर फॉरवर्ड, तब सच्ची बात फरमाया कि जो लोग उस मीटिंग में थे, सेक्रेटरी साहब, जो लोग उस मीटिंग में थे उनमें से तो सबने उनको बाद में मुबारकबाद दी कि 6 घंटे की मीटिंग बड़ी अच्छी है। आप कह रहे हैं कि हम मजम्मत करेंगे। अब आप बताएं, आधी यानी सारे प्रोफेसर को पता है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, चाहे जूनियर लोगों को नहीं पता हो, बाहर डिस्ट्रिक्ट होते होते, अब तो खबरों में आ ही चुका है, सारे प्रोफेसर को पता है कि ये क्या होगा। ये साल की एक बात, क्योंकि हर आदमी का केस होता है, हर डिपार्टमेंट का केस, वो फोन करके पूछते, पता चला पूरा सोशल साइंस ही हो गया। अब आप मुझे बताएं, आप एक डीएसआर के अंदर जो है वो सारे लोग के अपॉइंट होने वाले एग्जामिनर सबको उड़ा के रखते, तो कहने के वहां पे मीटिंग में बोलना चाहिए था ना लोग, कोई हमें आज लिखते थे, हम कल चलन बॉडी में। मैंने उसमें जवाब दिया कि जनाब वो आपको कह के गए कंट्रोलर्स मीटिंग में कि तुम दोनों झूठे हो, तुमने आज तक ज़फ़र इकबाल की बात मेरे सामने नहीं की, सदर से तुम दोनों झूठे, आपने उस पर एक लफ्ज नहीं बोला कि हम सच्ची, और आप झूठ बोल रहे है ना। अब आप कह रहे हैं कि दूसरा लिखते थे तो हम ये बात करें, तो देखिए ये माहौल जो है ना, ये इस शहर को तोड़ने की जरूरत। मैं तो समझता हूँ आज जब आप यहाँ बैठे बात की, मसाइल वगैरह की, मेरी तरह से जो बात नहीं करेंगे, अली कदर लाजमन कर लेंगे, मैडम कर लेंगी, लेकिन असल बात यह है कि आप ये देखिए कि हमारा मसला अब इन मसाइल से बढ़कर किस पर आ गया, हमारी इज्जत पर आ गया, है ना। हमारे आपस के एक दूसरे का बार बार इस तरह से उसकी तौहीन होने के नतीजे में क्या हो रहा है, हम सब तौहीन ज़दा होते चले जाते हैं। शायद ही कोई आदमी इसका आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा जो कि बड़े आराम से सीढ़ी चढ़ के जाए और अंदर कहे कि मुझे मिलना है, और वो मिल गए और मिल के वापस आ जाए कि हाँ जी मैंने बात कर ली हो, कोई नहीं मिलेगा। उसका एक असर आपको नजर आता है, आगे जाना, फोन करके कहा जाता है लिखो, फोन करके कहा जाता है लिखो, तो बेचारे लोग लिखते हैं कि हाँ भाई बड़ा गलत किया टीचर सोसाइटी, जबकि वो ऐनी शायद है बात उनमें से कि टीचर सोसाइटी में कुछ भी नहीं। एक आदमी को अगर टीचर सोसाइटी ने अपनी कंट्रोलर्स मीटिंग में नहीं बुलाया तो इस पे शिकायत करने वाली कौन सी बात है, तो पब्लिक की कंट्रोलर्स मीटिंग कोई भी आ सकता है। कंट्रोलर्स मीटिंग में क्या वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी होता है? नहीं होता, कोई भी मेहमान खुसूसी नहीं होता। तकरीर वाले अंदाज में कंट्रोलर्स मीटिंग में कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। हम सब ने बड़े ठंडे ठंडे बात, मैंने भी कहा बड़ा अच्छा क्या बात है, लेकिन देखिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस वक्त कि हमारे मसाइल से ज्यादा अब मामला जो है कहाँ जा रहा है, और उस पर टीचर सोसाइटी को जानना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा आज आप जनरल बॉडी रेगुलेट कराएं, अपने मसाइल पर कराएं, रवैये वाली बात ना करें, क्योंकि ये लोगों को जोड़ने वाली बात नहीं होगी, बल्कि ये तो लोगों को पहले ही पता। आप मसाइल के मसले के ऊपर जनरल बॉडी रेगुलेशन शुरू कराएं, लेकिन 300 लोगों से साइन करें, फिर जमा करें। ये 40, 50, 60 से नहीं होगा, क्योंकि जो अंदाज है टीचर सोसाइटी की क़यादत का वो बिल्कुल आपके अपोजिशन में जाना है, वो साथ है। मैंने बड़ी कोशिश की, उस दिन हलीम भी करी थी इसी वजह से, यहाँ लोगों को बुलाया भी
और वो समझ रहे थे मैं ग्रुप बना रहा हूँ, मैंने सारे लोगों को यहाँ बिठाया है इसलिए 2 घंटे बैठ के बात भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, मगर अब हर आदमी को अपना देखने का तरीका, तो वो तो आपकी जनरल बॉडी को कामयाब नहीं हो रही। ये तो ढंग बात मैं आपको बता, इतनी सियासत तो मैं नहीं समझ। अब उसको कामयाब अगर आपने करना है, अपने आप को बहाल कराना है, टीचर्स की इज्जत को बहाल कराना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप 300 लोगों से साइन कराएं, उसमें हफ्ता लगे, उसके बाद जनरल बॉडी करे कुछ, ताकि आप इतना ज्यादा लोगों में जा सकें। इसको एक इलेक्शन कैंपेन की तरह ना लें कि वोट मांगने के लिए जाए, उसको इसलिए लें कि भाई रेक्विजिट होगी, वहां बात होगी, तो टीचर्स को समझ में आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। उससे पहले टीचर स्ट्रेटेजी की आदत को मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी नहीं समझ में आएगा। जो लोग अपने आप को झूठा करार देने वाले वाइस चांसलर के पास 2 दिन बाद जाकर चाय पी ले, उनसे आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपके मसले के ऊपर, आपके टीचर के सस्पेंड होने पर, आपके टीचर के निकाले जाने पर बात करेंगे। इसका नतीजा जो है वो खराब निकलेगा। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि टीचर्स को यूनाइट भी किया जाए और बात जो है ना वो मसाइल पर ही रहे, रवैये वाली बात खुद ब खुद हल हो जाए। ये ऐसे नहीं हल हो, ये हमारी कमजोरी की वजह से किसी का रवैया ज्यादा वो हो जाता है। और मेरे ख्याल में आखिर में वाइस चांसलर की सेहत के लिए दुआ भी चले मेरे ख्याल से जो है वो